हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हम कोई भूल होना, इतनी शक्ति मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Thank you so much, everyone, for joining me in the prayer. Very quickly now, begin with today's session. It is really a very nice feeling to have every one of you back again today. I can see that more and more people are joining today's session. So it really makes me feel good about. So before we start with the session, I would personally like to welcome Shri Tarun Kumar Sir, Deputy Secretary and Head, CBSE, Center of Excellence, Patna. He's been there with us throughout all the sessions, and he's been a true blessing for us. So we warmly welcome you, sir, and thank you for joining us. Today, we begin this session with a very short introduction of myself. Your resource person for today, Ms. Kathy Twarkadas, PhD History, Head of Department of Social Science, and Innovation Ambassador and School Training Nodal Coordinator for Gopi Birla Memorial School, Mumbai, Master Trainer and Resource Person for CBSE. And today our topic has been art as a powerful engagement tool. So there'll be less coming up everywhere else, but everything will come on the chat box today. The audio is absolutely okay. So this is the proverb I normally use for many of my sessions, a Chinese proverb: tell me and I forget, show me and I may remember, involve me and I will understand. So with this Chinese proverb, it is very clear that students need to be involved, and art integration is a very powerful tool for engaging students in their learning.
चंदन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। तो चैट बॉक्स में नो ऑडियो बता रहा है, काफी पार्टिसिपेंट्स लिख रहे हैं नो ऑडियो। हो सकता है उनके लिंक में कहीं कुछ फॉल्ट हो। ऐसे आवाज एकदम क्लियर अभी आ रही है। ओके, थैंक यू सर. All those of you who are writing no audio, please try leaving the meeting and rejoining. So Rabindranath Tagore has also said, the problem is not how to wipe out all differences, but how to unite with all differences intact. So thank you so much आप लोगों को बताने के लिए मुझे कि my voice is very clear. Thank you. My audio is very clear. Participants are proving it. तो आप सबको मेरी ओर से आर्ट इंटीग्रेशन एज एन एंगेजमेंट टूल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट टूल है आर्ट, और मैं आपको आज हर सब्जेक्ट में आर्ट इंटीग्रेशन एज एन एंगेजमेंट टूल करके दिखाना चाहती हूँ. So role of a teacher in student engagement is very prominent. The grass is not green on the other side, it is green where you water it. तो आप जहाँ पौधे को पानी दोगे वहीं से वो ग्रीन होना शुरू करेगा. So students benefit from an approach to education that engages all of their senses. तो जिन स्टूडेंट्स के साइट यानी देखने की सेंसेस, सुनने की सेंसेस, सूंघने की सेंसेस, चखने की सेंसेस और टच की सेंसेस, सारी पांचों सेंसेस इंद्रियों को जब हम एकत्रित करके उन्हें अपने शिक्षण में एक हिस्सेदार बनाते हैं, when you make them responsible, when you make them take the onus for their learning using the 5 senses of sight, sound, smell, taste and touch, then they really benefit because they are involved. If you do not involve them in their learning, they are not going to be able to retain the learning. So the objectives of today's module is to understand art as a pedagogical tool and its impact on the holistic development of the learner. Familiarity with art experiences as a medium of creative self-expression, and the skill of planning and organizing age-appropriate art experiences to make learning of different subjects appealing. So how are you going to engage the learners? So when you look at 3 types of art education in school, one is the art as curriculum. So you will have your fine art, SUPW, or your other kinds of photography, visual art, dance, drama, enhanced art curriculum, and art integrated curriculum, which you will obviously be talking about, which makes your learning joyful. And there are 5 ways in which art improves school performance. 1, teaching the whole child. Art encourages an improved understanding of self and a greater sense of confidence among students. Instilling a growth mindset. So by learning about arts, the students can develop a range of essential skills. Unlike the more practical subjects like science or math, art requires pupils to become emotional. In cognition, evidence has shown that learning music just isn't about the notes. It helps to improve verbal memory, reading ability, executive functions, foreign language fluency. यानी आप म्यूजिक से क्या सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो,
डोरेमी फासोला टीटो तो कोई भी सीख सकता है, बट उससे आगे चलकर आप अपने स्टूडेंट्स को म्यूजिक से क्या सिखाना चाहते हो? म्यूजिक सीखने से एक बच्चे की वर्बल मेमोरी, रिटेंशन एबिलिटी, पढ़ने की मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, फॉरेन लैंग्वेज की फ्लुएंसी सब अच्छा हो जाता है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएंगी। And communication is the core of humanity. Students can learn a variety of powerful communication skills by studying art. A deeper cultural understanding and a greater awareness of self is possible through art. So, art education isn't just about having a positive impact on student learning or dipping a brush in some paint and calling it a day. Culture cannot exist without art. Art lies at the core of human identity. And this is why most important gift a teacher can give the students is an art appreciation, an understanding of art as well as the ability to create it for themselves. And in this particular thing, मुझे तो एक बड़ा अच्छा picture image याद आ रहा है. Just allow me to stop sharing for a moment for this point. एक बच्चे की कहानी है जो मेरे पास एक स्लाइड में पड़ी है. Just give me a moment. I want to show that to you today. ये जो कहानी है एक ऐसे बच्चे की है, छोटा सा बच्चा है और उसे खुद को पता नहीं चलता है कि उसे अचानक से किसी ने उठाकर कलर में डिप कर दिया और उसके हाथ पैर ऐसे पेंट में डिप करके उसे अचानक से बैठा दिया और नीचे जब वो बच्चा देखता है तो एक पूरी बतख बन चुकी है उसके डिपिंग से. So I want to show you that image. It's truly a wonderful image, and art as an engagement tool does welcome it. वो एक बड़ा मेरा फेवरेट इमेज है. So let me just share it with you. This one. ये बच्चा अचंभे में है, आश्चर्यचकित हो चुका है और बच्चा बोल रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया. मैं तो चुपचाप अपने एक कोने में बैठा था और अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, किसी ने मुझे ऐसे उठा लिया, मेरे पाँव को, मेरे पैर को येलो पेंट में डाल दिया और ब्लू पेपर पर या ब्लू चार्ट पेपर पर मुझे किसी ने बैठा दिया और मैं देख रहा हूं तो एक बतख बन जाती है येलो पेंट से. तो ये एकदम आश्चर्यचकित बच्चा है. और साथ में ही देयर इज वन मोर दैट आई वांट टू शो यू. ये देखिए, हाथ में आप देखोगे तो रेड एंड वाइट एंड स्किन कलर, ऐसे 3 कलर पाम पर ऐसे अंकित किए गए हैं. जब पाम उल्टा करते हैं पेपर पे तो आपको सांता क्लॉज बना हुआ दिखता है. तो ये तो छोटी सी स्ट्रेटेजी है आर्ट को पावरफुल टूल बनाने के लिए. So these are some very powerful strategies which I love sharing in my classrooms. I love sharing in all my presentations, and I know that brilliant participants like you would love to be a part of it. I also see Sudhir Kumar sir having joined us, so welcome to Sudhir Kumar sir. And yes. The chat box is open for you to put in your comments, your expressions, and because it is art is an engagement tool,
तो आपको मैं प्रश्न तो कम ही पूछूंगी, आपके सब्जेक्ट के बारे में जरूर से पूछूंगी, but I would love you to constantly keep the chat box moving with interaction. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मत लिखिएगा, अपना नाम परिचय मत दीजिएगा, पर आपकी कमेंट्स जो टॉपिक चल रहा है उस पर आनी चाहिए। तो आर्ट से हम क्या समझते हैं? आर्ट में भी हम दो चीजें समझते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और बहुत समय तक हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस, परसेप्शन, आसपास का देखने का नजरिया अलग होता है। तो आर्ट को भी हम दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है विजुअल आर्ट और एक है परफॉर्मिंग आर्ट। सो व्हेन यू टॉक ऑफ द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, आप चैट बॉक्स में लिखना चाहोगे विजुअल आर्ट्स कौन से हैं एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन से हैं? बड़ा मजा आएगा चैट जब चलेगी तो। विजुअल आर्ट्स कौन से हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन से हैं? So drama and dance are performing arts, banner, chartboard are visual arts. To draw or make something is a visual art. Okay, I'm going to show you images और आप तुरंत बताओगे चैट में। वंडरफुल प्रिया मिश्रा जी, तो अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी और आप चैट में मुझे बताओगे कि ये विजुअल आर्ट है या परफॉर्मिंग आर्ट। आई कैन सी दैट पीपल ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतने दिनों का हमारा सफर, मुझे लगता है शायद ये महीनों से चल रहा है कि हम कुछ सेशंस में मिलते हैं, पर आप लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग इन सेशन से इतना बेनिफिट करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं आकर आपसे सेशन लेकर जाती हूँ और आप उसके बारे में मुझे छोड़ देते हैं। आप लोग सीख कर उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। So visual arts are art forms that create works primarily visual in nature, like ceramics, drawing, painting, sculpture, printmaking, design, craft, photography, video, filmmaking, and architecture. Ram Babu Patel, I'm very happy. And there are many others who've been writing in the chat that you have been implementing things from my sessions. Thank you so much. मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे एक बड़ा ऑनर और हम्बलनेस भी फील हो रहा है आप लोग के लिए कि आप लोग इतने अच्छे से सेशंस को अपने क्लासरूम्स में ले जा रहे हैं। हालांकि कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, देखती हूँ आज कितने लोगों ने मेरा होमवर्क किया है। इतनी जल्दी मैं होमवर्क भूल नहीं जाती हूँ। तो ये क्या है? विमलेश चंद्र जी, कुछ तो लिखिए, ये क्या लग रहा है आपको? इट्स विजुअल आर्ट, यस, पर इसमें क्या दिखाया गया है? Art makes us creative. There are perspectives, Niharika ji, wonderful. Visual art with a message. Creativity is important. Manish Kumar ji, lovely. I like that.
तो इसमें देखिए आपको चेहरे दिखेंगे, एंड दिस इज एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जहां आपको बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक के चेहरे दिखेंगे एक पर्सपेक्टिव से यदि आप देखोगे। दूसरे पर्सपेक्टिव से जब आप देखने जाओगे तो आपको ट्राइबल एज से लेकर मॉडर्न डे पीरियड तक के चेहरे दिखेंगे। आपको इसी इमेज में मेल फीमेल इमेजेस चेहरे भी दिखना शुरू करेंगे। सो क्लोजली देखिए, there are male images of the face, there are female images of the face. एंशंट आदिवासी, हम लोग सीखे हैं रेड इंडियंस, ट्राइबल्स, वो कैसे अजीब से वो कलरफुल हेड गियर वाले फेसेस, वैसे भी चेहरे दिखते हैं। हम लोग स्टेन ग्लास पेंटिंग नहीं देखते, तो स्टेन ग्लास पेंटिंग की इफेक्ट भी दे रहे हैं। और आप देख रहे हो कि आई टू आई एक वो जा रहा है, यानी ये देखने का नजरिया दिखा रहा है ये पेंटिंग आपको, कि आप क्या क्या देख सकते हैं। इसमें केवल फेस नहीं दिख रहा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेसेस दिख रहा है, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड दिख रहा है। ये क्या है? ये फेस नहीं है श्वेता कुमारी जी। दिस इज अ वेरी फेमस पेंटिंग, यस निहारिका मैम, मोनालिसा। आलोक कुमार जी, वेरी गुड, दिस इज मोनालिसा। ये क्या है? ग्राफिक्स, स्कल्पचरल आर्ट, जॉली मूड पेंटिंग। मोनालिसा तो चल चुका। गेम्स ऑफ द माइंड, लवली। अब देखिए आपका नजरिया बदल रहा है विथ एवरी इमेज आई एम शोइंग यू। ये वेस्ट मटेरियल नहीं है। ये क्या है? ब्रेन गेम, 3D ग्राफिक, 3D आर्ट। ये आप देख रहे हैं लेगो टॉयज की फैक्ट्री है, और लेगो टॉयज ने ऐसे अपने फैक्ट्री में बना रखे हैं इमेजेस, एनिमेटेड इमेजेस। इट्स डेफिनेटली 3D आर्ट एनिमेशन, बट लेगो टॉयज ने ये बना रखे हैं कि आप गेम्स के थ्रू 3D आर्ट अपना पाए, एंड अपना आप ऐसे ऐसे 3D आर्ट से स्कल्पचर्स, फिगर्स, एनिमेशंस बनाएं, तो आपका अपना आर्ट एंगेजमेंट बढ़ेगा। और ऐसी चीजें, ऐसे स्ट्रक्चर्स तो बच्चों को भी बनाने में बड़ा मजा आता है। Now, performing arts are basically arts or skills that require a performance in front of a public or audience. So, acting, singing, dancing. या हम टीचर्स जो करते हैं, क्लासरूम में जाकर भी हम परफॉर्म करते हैं बच्चों के सामने, बिल्कुल ड्रामा बनाते हैं, तभी तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टोरी। ओपरा, थिएटर, मैजिक, जादू भी करना पड़ता है कभी कभार, कभी मिमिक्री भी करनी पड़ती है, कभी पोएट्री भी बोलनी पड़ती है, और कभी हमें जाकर पब्लिक स्पीकिंग भी करना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो मोनो एक्टिंग तो हम हर रोज करते हैं, हर दिन करते हैं, 7-7 घंटे करते हैं मोनो एक्टिंग। और इसमें क्या हो रहा है पता है? हम लोग बन चुके हैं पब्लिक फिगर्स, और क्लास में जाकर
जैसे हम तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री की हर इवेंट में एक स्टोरी बनाते हैं, या तो हम इनेक्ट करते हैं या बच्चों से करवाते हैं। ज्योग्राफी के हर लैंडस्केप में आर्ट बनवाते हैं, तो हम भी बनाते हैं, बच्चे भी बनाते हैं, बच्चों को दिखाते भी हैं कि ओरिजिनली कैसा लगता है। तो आर्ट इंटीग्रेशन होता है। दीनबंधु मिश्रा जी, टीचिंग इज द बेस्ट आर्ट एंड आई अग्री विथ यू। ये देखिए, म्यूजिक बेस्ड, हम स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी खड़े कर देते हैं, अलग अलग मुखौटे पहनकर, सिंगिंग, डांसिंग, क्या कुछ नहीं करते। ड्रामा, बैले, ये देखिए डांस, ऐसे ऐसे नृत्य भी करवाते हैं, और ये बड़े कठिन नृत्य होते हैं जो हम करवा लेते हैं। आपने अभी अभी देखा होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा है टेलीविजन पर, और क्या टैलेंट है। ड्रामा भी देखिए हम करवा ही लेते हैं बच्चों से। ये माइमर्स हैं जो बोलते कुछ नहीं, केवल अपनी आंखों के एक्सप्रेशंस, आईब्रो मूवमेंट्स और हाथ की मूवमेंट से क्या कुछ नहीं कहे जाते। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या हो जाता है, जब हम आर्ट को, वेरी ट्रू बीरेंद्र कुमार जी, बॉडी लैंग्वेज से ये काम करते हैं, जब हम आर्ट को इंटीग्रेट करते हैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो एक सीमलेस मीडियम ऑफ टीचिंग लर्निंग बन जा रहा है, जहां कॉन्सेप्ट्स जॉयफुली लर्न होते हैं बच्चों से। हमें उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं सिखाना पड़ता है। आप उनके सामने एक एप्पल, एक बॉल, एक बनाना, एक कैबेज रख दीजिए, एंड इट क्रिएट्स अ न्यू टीचिंग मॉडल। तो ये बड़ी अच्छी चीज लगती है। निहारिका मैम, आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखती हैं चैट में। तो हमें जैसे ये है एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या हो जाएगा, आर्ट एजुकेशन को हम लेंगे, साथ में मैथ, साइंस, थर्ड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, हिस्ट्री, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, रिलीजियस एजुकेशन, स्क्रिप्चरल या स्पिरिचुअल एजुकेशन, सारा मिक्स करके एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देंगे। यानी एक ही टॉपिक लेकर उसको अलग अलग नजरिए से देखेंगे। यानी आप बच्चों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। कल जैसे हम बात कर रहे थे लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की, अब लाइब्रेरी वाला ही प्रोजेक्ट जिसे आप प्लान कर रहे हैं, उसी को मॉडिफाई कीजिए, रिफाइन कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, और उसी प्रोजेक्ट में डालिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी उसी प्रोजेक्ट को एक बच्चा लाइब्रेरी रिसर्च के बेस पर अलग अलग सब्जेक्ट्स को पकड़ के आर्ट इंटीग्रेशन से करेगा। तो जैसे मैं महाराष्ट्र में हूं, तो सीबीएसई ने महाराष्ट्र का पार्टनर स्टेट बना दिया है उड़ीसा। अब आपका पार्टनर स्टेट कौन सा है? Which is your partner state? पटना के लोग कौन से स्टेट के बारे में आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं? झारखंड, मणिपुर। मणिपुर मुझे ज्यादा सही लग रहा है झारखंड से तो। So when you are talking about Manipur, we expect you to do an art integrated project based on these concepts and learning tools.
Just give me a moment. There is a phone ringing. It would be disturbing you. Just give me a moment. Absolutely sorry for that interruption. फोन की घंटी पर एक घंटी बज रही थी. Sorry. Let me just reshare my screen. I think it's now reshared. तो हम जैसे बात कर रहे थे आर्ट इंटीग्रेशन की, और आर्ट इंटीग्रेशन से हमें it is visual art. I am not sitting behind the forest is behind me. So it is visual art, जिसे हम virtual backdrops कहते हैं. और पैंडेमिक में विजुअल आर्ट से ही सारी क्लासेस चलती है. तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, फॉरेन लैंग्वेज, एब्सोल्युटली दीनबंधु सर. तो हम देख रहे हैं कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आप एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी डालेंगे, which is your art integrated approach. So why art integration in education? To reduce the curricular burden by making learning meaningful and joyful. To enable holistic development, taking care of all the three domains, cognitive, affective, psychomotor. To enhance the skills to communicate and the power to express. To help the child become more sociable, to develop aesthetic sense, enhance creativity among children. And art is a powerful medium of expression, is a strong pedagogical tool. तो स्टूडेंट एंगेजमेंट से हम क्या समझते हैं? हम तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं. तो अंतिमा मिश्रा जी का पार्टनर स्टेट त्रिपुरा है, किसी का मणिपुर है. अब बच्चा सोच रहा है, टीचर बोल रही है स्टूडेंट एंगेजमेंट, और बच्चा कह रहा है मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी शादी नहीं हो सकती. तो स्टूडेंट एंगेजमेंट का मतलब क्या है? क्या हम स्टूडेंट्स की शादी करा रहे हैं? नो. तो हम क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट एंगेजमेंट क्या है? स्टूडेंट्स को को करिकुलर एक्टिविटीज, क्लासरूम एक्टिविटीज में बांधे रखना, उनको मोटिवेट करना कि वो प्रेम से, प्यार से अपना एक इन्वॉल्वमेंट बनाए पढ़ने में. उनको बिजी रखना ठीक है, पर उनका जो लर्निंग है वो जॉयफुल बनाए. जब बच्चे का लर्निंग जॉयफुल बनेगा तभी उसको सीखने की इच्छा होगी. सो स्टूडेंट एंगेजमेंट से क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल में स्टूडेंट एंगेजमेंट करवाने का? स्टूडेंट लर्निंग मैक्सिमाइज कराना,
हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट बनानी क्लासरूम्स में, promote meaningful learning, monitor students' learning outcome, avoid boredom, monotonous classrooms, lazy, make learning interesting, prepare alert, active, and smart global students who can think critically, minutely, rationally, and creatively. So student engagement is the product of motivation and active learning. It is a product rather than a sum because it will not occur if active learning and motivation are missing. दोनों चीज चाहिए तभी स्टूडेंट लर्निंग होगी. तो जब हम देखते हैं कि आर्ट को हम करिकुलम में कैसे इंटीग्रेट करेंगे ताकि एंगेजमेंट हो, तो हम बता रहे हैं पपेट बनाइए, कॉस्ट्यूम्स बनाइए, पेंटिंग ड्राइंग कीजिए, सीनरी, कैरेक्टर्स, क्ले मॉडल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, एनवायरनमेंट, प्रॉप, रिसाइकल्ड मटेरियल्स, स्टोरीज एक्ट आउट कीजिए, कोलाज, वीविंग, रोल प्ले, ड्रामा, convert a chapter into a dialogue, questions to promote thinking, use give away lower order questions and use higher order questions. Languages में हम क्या करेंगे? Figures of speech. तो देखिए, वेरी गुड चैट तो मजेदार चल रहा है. आज का लेसन है सिंबॉलिज्म पर जो चल रहा है, और टीचर बता रही है फिश टैंक से फिश निकालकर, लेट्स से दिस फिश इज अ स्टूडेंट हु डिडंट डू हिज होमवर्क. So figure of speech and language is not meant to be taken literally. It's meant to create vivid images, and it includes similes, metaphors, personification. तो यहाँ पर fish को human form दिया गया है, एक symbol बनाया गया है, और figures of speech मतलब simile, metaphor, personification, alliteration, और उनको भी हम क्रिएटिवली डिपिक्ट कर सकते हैं आर्ट के माध्यम से. ये देखिए, द स्लाइस ऑफ ब्रेड जम्प्ड आउट ऑफ द टोस्टर सडनली स्कैरिंग मी. तो ये तो बड़ी अजीब बात है, पर इसको हमने कितने आर्टिस्टिकली डिपिक्ट किया है. द नीडल वाज दिस बिग. क्या हमने इतनी छोटी सी सुई को इतना बड़ा बनाया है? Even the vaccine needle cannot be this big. Vaccine वाली सुई भी इतनी ही थी. You're as skinny as a rail and you're a mountain. The style of presentation is attractive, और साथ में ये क्या है? Skinny as a rail. पतले हो, दुबले पतले हो, और आप पहाड़ जैसे दिख रहे हो, इतने मोटे, बड़े, लंबे, चौड़े हो. कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात हो गई. लैंग्वेजेस में क्रिएटिव राइटिंग चलता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग चलता है. आप एक तस्वीर दिखा सकते हैं और एक डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं इस तस्वीर को देखने पर. स्टोरी राइटिंग में आप स्टोरी स्टार्ट कीजिए या एंड कीजिए, तो नीचे वो गाय भैंस वाली स्टोरी चल रही है, या फिर जादुई नदी की स्टोरी हो सकती है, चूहा और पर्वत हो सकता है, पेड़ का खजाना हो सकता है. आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टोरी लीजिए, बड़े अच्छे से चलती हैं ये स्टोरीज. ईडियम्स, जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं. 9 2 11 होना यानी चले जाना, गायब हो जाना. नाटक काटना, सॉरी नाक काटना. क्या हम चक्कू छुरी लेकर किसी की नाक थोड़ी ना काटते हैं. 9 2 11 भाग जाना, थैंक यू. और नाक काटना होना, ओके. परेशान करना इज नॉट नाक काटना. हवा के साथ बात करना
हवा के साथ बात करना, तेज चलना, मूविंग फास्ट, केयर फ्री, तेज गति में होना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है उसी की विजय होती है। माइट इज राइट। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। हिंदी मुहावरे देखते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, जिसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। जो मूर्ख है उसको भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे मुहावरे भी बेवकूफ को समझाना। तो ऐसे ऐसे मुहावरे हम बिल्कुल आर्ट इंटीग्रेशन से एंगेजिंग कर सकते हैं। अब ये क्या है? एक शेर सवा शेर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक शेर तो दूसरा सवा शेर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऊंट के मुंह में जीरा, और वो ऊपर वाला क काला अक्षर भैंस बराबर। वंडरफुल। तालियां आप सभी के लिए। आप लोगों ने आर्ट इज अ पावरफुल टूल फॉर एंगेजमेंट को सार्थक बना दिया। तो मैथमेटिक्स में हम आर्ट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हम सर्कल्स पढ़ा रहे हैं तो सर्कुलर डिजाइन्स भी बनवा सकते हैं। स्क्वायर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल पॉइंट्स। गणपति बनाना हो, गणेशा, हाउ टू ड्रॉ गणेशा विद बेसिक शेप्स। तो देखिए कितना सिंपल है। ट्रायंगल, स्क्वायर, आगे सूंड बना दी, कोई स्टार बना दिया, कोई सर्कल बना दिया। तो कितनी कितनी सिंपल सी चीज थी। सिलेंडर, पिरामिड, क्यूबॉइड, स्क्वायर, क्यूब, ट्रायंगुलर प्रिज्म, कोन, इन सब चीजों से हम कितने सारे शेप्स देख सकते हैं। ये तो माचिस से बने हुए हैं, टूथपिक से बने हुए हैं, क्ले से जुड़े हुए हैं, पर आप और क्या क्या नहीं बनवा सकते बच्चों से। ये देखिए सिमेट्री, बटरफ्लाई बनाना, दोनों साइड सेम होती हैं बटरफ्लाई में। और ये क्या है? ग्राफ पेपर आर्ट। किसने कहा कि एक्स एंड वाई की टाइमलाइन ही बनानी है? आप ग्राफ पेपर से ये भी बनवा सकते हो। ये नॉर्मली ऐसा काम ना वो जो क्राफ्ट करवाते हैं, नीडल वर्क, ऐसे वाले लोग करवाते हैं। आप मैथमेटिक्स में एल्गोरिदम्स पढ़ाते हैं, तो एल्गोरिदम्स का फ्रैक्टल आर्ट क्या है? जो मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं उनको ये चीज समझ में आएगी कि एल्गोरिदम से फ्रैक्टल आर्ट भी बन सकती है।
मैथ वेबसाइट्स भी हैं जहां पर आपको ये मिल सकते हैं, तो आप क्विकली इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास, मैं मना नहीं करूंगी। फिर हिस्ट्री में देखिए कोलाज वर्क हो सकता है। ये देखिए एक पूरी टाइम की हिस्ट्री एक ही इमेज में दिख रही है आपको। क्ले मॉडलिंग, रोमन कॉइन्स, रोमन ही क्यों, इंडियन भी बनवा सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स के कॉइन्स भी बनवा सकते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट सिखा रहे हैं तो ये भी करवा सकते हैं एक्टिविटी। आजकल तो वर्चुअल म्यूजियम की टूर्स भी होती हैं, ऑनलाइन म्यूजियम्स में म्यूजियम्स दिखा सकते हैं, फॉरेन म्यूजियम्स भी, विदेश के म्यूजियम्स हम घर बैठे दिखा सकते हैं। तो आप चैट जारी रखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी चैट चल रही है उससे। पॉटरी इन द हड़प्पन पीरियड, अब बच्चों से आप बनवा भी सकते हो, पॉटरी दिखाकर ये भी कह सकते हो कि इससे आप क्या डिसाइफर करोगे, इससे आपको क्या मतलब निकलता है। बट ये वाली पॉटरी हम न्यू दिल्ली म्यूजियम से लाए हैं। ज्योग्राफी में हम क्या कर सकते हैं, रेन फॉरेस्ट की बात कर पढ़ा रहे हैं तो रेन फॉरेस्ट पर उनसे एक ट्रैवलॉग बनवा सकते हैं, एक रेन फॉरेस्ट का पूरा चित्र बनवा सकते हैं, एक ब्रोशर बनवा सकते हैं। ओरिगेमी, एंडेंजर्ड एनिमल्स, ये जो पेपर आर्ट है ये भी कर सकते हैं। लेगो टॉयज से ज्योग्राफी की पूरी पूरी सिविलाइजेशंस मैप्स दिखवा सकते हैं, लैंडफॉर्म्स दिखा सकते हैं। ये ग्रेविटी डिस्टरबेंस समझने के लिए ये ग्लोब बना हुआ है। और इसके ऊपर में इट्स लाइक अ 3D ग्राफिक, इसके ऊपर ऐसे आप देख रहे हैं कोन्स बने हुए हैं टू शो द ग्रेविटी। तो ऐसी चीजें भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप ऐसे वाइल्ड लाइफ, अर्थक्वेक, फायर, फ्लडिंग, ड्राउट, हरिकेन, टॉर्नेडो, natural and artificial disasters, map symbols, the legend of the map, this can also be drawn. Educational apps are found in the educational app store for geography. साइंस के लिए, साइंस एंड आर्ट अगर आप दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो मैजिक ही बनेगा। इलेक्ट्रिक मोटर को देखिए आप चला सकते हो आर्ट से। किया क्या है, एक बैटरी डाली हुई है और 2 नीडल से थ्रेड पास किया हुआ है। हैरी पॉटर वॉन्ड स्टेम प्रोजेक्ट, तो बच्चे ने हैरी पॉटर की वॉन्ड भी बनाई है और उसको मैजिकली क्राफ्ट भी किया हुआ है। ये देखिए लेफ्ट साइड में पत्ता है, पत्ते को पेंट में डिप करके उसका एक इमेज बना है ऑरेंज। बेकिंग सोडा से एक्सपेरिमेंट करके आप अर्थक्वेक, वॉल्केनो कुछ भी बनवा सकते हैं। पोम्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, तो आप शैडो पढ़ा रहे हैं तो शैडो से इंटर रिलेट करिए पोएम को। डेजर्ट एनिमल्स, यदि आपको चाहिए तो एक क्रॉसवर्ड में वर्ड सर्च दे दीजिए, जहां एनिमल्स के नाम है बच्चों को बोलिए डेजर्ट एनिमल्स ढूंढिए। नेमोनिक्स, तो जो पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट है उनको hello listen to BBC news on Friday night, some men are selling pizza so contact Argan Pizza Company, ऐसे करके नेमोनिक बना हुआ है। और ऐसे आप पूरे 20 एलिमेंट्स एक साथ बच्चों को सिखा सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब रैबिट से भी करवा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से भी करवा सकते हैं,
पर एक खेल कूद का एक अनोखा आनंद होता है जो सीधे सीधे क्लासरूम बड़ा बोरिंग लगता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये बड़े साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। यदि बच्चा इतने में ही समझ जाए तो बड़ी बात है आर्ट इंटीग्रेशन से, वरना लाइफ टाइम तक बच्चा साइंस छोड़ देगा। अब ये ईसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा मॉडल बनवा कर आप दिखा सकते हैं क्लास में। तो इसी के साथ 5 बजने वाले हैं एंड लाइक एवरी अदर डे, yes, so just like every other day, today also we thank Shri Tarun Kumar Sir, Deputy Secretary and Head CBSE Center of Excellence Patna, for joining us and blessing us in this wonderful session on art as a powerful tool for engagement. Thank you so very much, Dr. Sudhir Kumar Singh and Chandan Sir from the Muzaffarpur Sahodai School Complex, and to all of you wonderful participants who've joined me throughout the session and kept the chat on throughout. आप लोगों ने जितनी अच्छाई से इस सेशन में पार्टिसिपेट किया है, अपने प्रतिभाव दिखाए, मुझे तो लगा कि आप लोगों को आज का सेशन भी एक अलग सेशन रहा, पर आपको अच्छा लगा। तो आपकी आज के सेशन से अपने क्लासरूम में क्या ले जाएंगे, ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैट बॉक्स आप ही के लिए मैंने खुला छोड़ा है। Study with art. Art is an engagement tool. My style is what you're going to take back to your classroom. Lovely. I'm happy, Kajal ma'am, you liked the session and you would love to present it. Some people are mentioning that as well. And people love creativity. आपको सबको creatively ही sessions आगे लेने हैं. So one last time in this academic session, we shall be meeting tomorrow at 4 o'clock. Yes, engagement of students with art and fun to make learning joyful. Lovely. This session was also with joy and work. Thank you so much. Thank you so much. आपका उत्साह और हौसला मुझे आपके संग हिंदी अंग्रेजी दोनों में बात करने से नहीं रोकता। तो आप कृपया करके दोनों भाषाओं से मुझसे बातें कर सकते हैं। However, WebEx chat asks you to write in English script. आप चाहे हिंदी का वाक्य क्यों ना लिख रहे हो, पर देवनागरी लिपि ना लेकर आपको इंग्लिश लिपि ही लेनी है। वरना आपका टाइप किया हुआ मैसेज मेरे पास बॉक्सेस बन के आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे खुद को बड़ा मजा आया कि आप लोग ने आज भी सेशन को बड़े दिल से स्वीकार किया, बड़े दिल से आप लोग कर रहे हैं।
थैंक यू वेरी वेरी मच। सर, आप से आज्ञा लेकर आज इस सेशन को मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। कल फिर मिलेंगे। सुधीर सर का शायद ऑडियो ऑफ है, पर चंदन सर आपको शायद मेरी आवाज पहुंच रही है। यस मैम, मिल रही है आवाज। हाँ जी, तो आज हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू कल मैम, दोबारा मिल जाए। जरूर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। और वीडियो का लिंक डाल दिया था मैम आपको। हाँ, मिल गया। मैंने दोनों वीडियो भेज दिए। आज का भी आप भेज दीजिएगा तो मैं भेज दूंगी। ओके मैम, आफ्टर 15 मिनट्स। ओके, थैंक यू सो मच सर।